children, today we are going to start with chapter number 4, that is temperate zone of the world. So let's study about the temperate zone, the area which lies above the equator and between the Tropic of Cancer, उसको हम temperate zone बोलते हैं. So let's start with the chapter now. You might have heard the word climate many times. So climate, what it is? The climate of a place is an average weather condition over a long period of. जब एवरेज जो कंडीशन होती है वेदर की लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या रहती है, सेम रहती है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस मे बी हॉट, वेट, ड्राई, कोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन. So it affects the plants, animals, lifestyle of the people, their food habit, clothing, housing, and many things. So let's study about the factors affecting the climate. So what are these? First is latitude or distance of the place of the equator. जो प्लेस इक्वेटर के पास होगी वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज होगी तो वहाँ पे बहुत गर्मी होगी, राइट. और थोड़ी दूर होगी वहाँ पे स्लैंटिंग रेस पड़ेगी, लाइक यू कैन सी ओवर है. अगर आपका सन यहाँ पे है सो आप देखिए सनरेज डायरेक्ट जा रही है तो ये बहुत ज्यादा कैसा होगा, इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है, हॉट होता है. वहीं सनरेज होगी तो कैसे जा रही है, स्लैंटिंग जा रही है, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं हो, राइट. सो फर्स्ट इज लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. द प्लेसेस विच इज मैंने आपको बताया क्लोज टू इक्वेटर, वहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ेगी, जिससे वहाँ पे मौसम कैसा होगा, हॉटर होगा. और जब प्लेसेस नियर द पोल्स होगी वहाँ पे स्लैंटिंग सनरेज होगी तो वहाँ पे थोड़ा कोल्ड होगा. We can perform simple experiment. Let us light a torch directly on the floor. The circle of the light is bright and concreted. But after slanting the torch, we see that the light is scattered. आप देखेंगे जो light है वो एक large place पे scatter हो जाती है. So this is how latitude affects the temperature of a place. Latitudes क्या करते हैं, effect करते हैं किसको, temperature of the place. Now altitude. Altitude of a place refers to the height above the sea level. We know that higher we move, the cooler it do. जैसे जैसे आप ऊंचे पे जाते रहोगे उतना ही क्या होगा, ठंडा होता रहे. राइट. नाउ लैंड एंड सीज. हेयर लेट्स सी देम. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. देखो जो आपके नाउ देख रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जन जोन होती है, टेम्परेचर होता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी का बात करें, प्लेसेस अराउंड द सी वो ना तो ज्यादा हॉट होती है ना ज्यादा कोल्ड होती है. सो दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट. बट द प्लेसेस फार फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी हॉट इन समर and very cold in winter. So in summer, land heats up faster and it turns heat up air above it. The warm air rises up, making room for cooler air from above the sea to flow in. Now in winter, the sea remains warm. Why? Because it loses heat slowly while the land becomes cool. This is how sea breeze maintain moderate climate in the nearby places. Next is humidity, which is refers to amount of moisture in the air of a place, and the distance from the sea also affect the humidity. Distance होता है of the place, वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है. Next is places located near the sea have higher humidity as they are very extensive evaporation take place. वहीं हम कुछ कोस्टल एरियाज की बात करें, जैसे मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, कोलकाता हो गया, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है. एंड लैंडलॉक प्लेसेस है भोपाल, चंडीगढ़, इनसे. So next is wind. So wind also influence the climate of a place. Wind may be either hot or cool. वो किस पे डिपेंड करता है, प्लेस ऑफ उसका प्लेस क्या है, और उनका कहाँ से वो आ रही है, ठीक है. वो ठंडी जगह से आ रही है, मॉइस्चर लेके आ रही है, या फिर डेजर्ट से आ रही है. इट्स डिपेंड अपॉन दैट. जो साइंटिफिक स्टडी होती है क्लाइमेट की, व्हाट वी कॉल इट क्लाइमेटोलॉजी. नेक्स्ट इज टेम्परेट और हीट जोन. कहाँ लाई करते हैं टेम्परेट जोन, बिटवीन दैट इज योर Tropic of Cancer and Arctic Circle, Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. Right? Temperate or heat zone are determined by the amount of sunlight received by that place. The shape of the earth is very significant in this regard. So earth कैसा है, spherical, उसकी surface curved है, that is why sun rays have to travel greater distance. So we have heat zone, we have torrid zone, जो आपकी इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करते हैं, दिस वन, ठीक है. और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप, दिस इज योर हीट जोन और टॉरिड जोन. नाउ टॉरिड जोन, व्हाट इज टॉरिड जोन? इट इज कॉल्ड हॉट जोन. इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द सरफेस बिकॉज इट गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. ये स्ट्रेच करती है फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू, आई हैव टोल्ड यू अबाउट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नाउ वी कैन सी in it has a tropical climate because it receives sun rays throughout the year.
क्योंकि वो क्या करता है, सनरेज को रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर, एंड हाई टेम्परेचर कॉजेज लॉट ऑफ इवापोरेशन, रेनफॉल, देयर इज हार्डली एनी विंटर सीजन हियर। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन, ये कहाँ लाई करता है, बिटवीन फ्रिजिड एंड टॉरिड जोन। एज इट अपीयर्स फ्रॉम द नेम, द प्लेसेस इन दिस जोन आर नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है, राइट। वी हैव नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट। ये जो जोन है, इफ वी टॉक अबाउट, यहाँ पे आपको स्लैंटिंग सनरेज देखने को मिलेगी जो ठंडी होती है, देन टॉरिड है। द समर एंड द विंटर सीजन आर वेरी distinct in this zone, and the days are longer in summer months and nights are longer in winter months। ये डिफरेंस है। फ्रिजिड जोन आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड लाई करती है। दो पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ फ्रिजिड जोन और सर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ फ्रिजिड जोन, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे ड्यूरिंग द समर, इफ वी टॉक अबाउट आर्टिक सर्कल में, डे लाइट रहता है 6 मंथ्स का, और डे और मतलब नाइट रहती है 6 मंथ्स की, ठीक है। This is all in this chapter. Hope you understood about all the zones of the earth. I have told you about the torrid zone, temperate zone, and frigid zone. That's all for today. Now we will meet in the next class. Thank you.